Hello, good evening, class 11 students. We have completed the theory of laws of motion. Now, from this video, we will continue with the numericals for laws of motion. Okay, so the first question, which is very interesting, it is an NCERT question. Two identical billiard balls. Now, what is billiard balls? Billiards, देखो ना पोल type बोलते हैं. Two identical billiard balls strike a rigid wall with the same speed but at different angles and gets reflected without any change in speed as shown. What is the first point? The direction of force on the wall due to each ball. Second, the ratio of the magnitudes of impulse imparted to the balls by the wall. Okay. So, what is happening? We need to find the direction of force on the wall due to each ball and the ratio of the magnitude of impulse on both the cases. You have to find impulse in first case, you have to find impulse in the second case, and then you have to divide them. So this is the story they are talking about, right? So what is the first case? This is the first case where this is the initial velocity is going like this and is returning back with same velocity u. Okay. In the second case, it is coming like this with initial velocity u with certain angle 30 degree and then return back with the same velocity u. Okay. Now you have to understand. See, this question one is sure that we need to find impulse. Now what is impulse? Change in momentum. That means we need to find change in momentum. इतना तुम्हें पता होना चाहिए. Impulse का formula क्या होता है? Change in momentum या तो force into time. So we hardly use force into time. We always use change in momentum because see velocities are given to you. Initial velocity is also given to you. Final velocity is also given to you. So we need to find change in momentum. We will get the impulse value. That is okay. But what to with this one? इसके साथ क्या करूँ? How to find the direction of force on the wall? तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तुम्हें चेंज इन मोमेंटम किसका निकालना आएगा? बॉल का. BOBA बॉल का फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम पता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू. बॉल का इनिशियल और फाइनल मोमेंटम तुम्हें पता है. तो बॉल का मैं चेंज इन मोमेंटम वी कैन कैलकुलेट, राइट? अगर तुम बॉल का चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हो मतलब तुम बॉल में फोर्स निकाल सकते हो. ओके, बिकॉज सेकंड लॉ क्या बोलता है? फोर्स ऑन एनी बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द rate of change in momentum and the direction of force is towards the direction of change. ये मैंने थ्योरी में पढ़ाया हुआ है कि जो फोर्स का डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स फाइनल मोमेंटम की तरफ होगा. सो अगर तुम बॉल का मोमेंटम निकाल सकते हो दैट मीन्स तुम डायरेक्शन ऑफ फोर्स बॉल का निकाल सकते हो. बॉल का. ओके, तो अगर तुम बॉल का डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकाल लोगे तो बॉल का अगर फोर्स निकल गया उतना ही ऑपोजिट लगेगा वॉल पे, क्योंकि पहले वॉल पे फोर्स लगाएगा फिर बॉल पे लगाएगा. तो अगर तुम्हें बॉल का फोर्स का डायरेक्शन मिल जाए तो तुम वॉल का निकाल सकते हो. बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ एवरी एक्शन हैज एन इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन. तो हम डायरेक्टली फोर्स ऑन वॉल नहीं निकाल सकते. इट्स नॉट पॉसिबल. पहले मुझे क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि वॉल का चेंज इन मोमेंटम तुम्हें नहीं पता. तुम्हें बॉल का चेंज इन मोमेंटम निकालना आएगा बिकॉज बॉल का इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी यू नो. सो व्हाट आई एम डूइंग, फर्स्ट आई एम कैलकुलेटिंग बॉल चेंज इन मोमेंटम. Okay, not because I need to calculate impulse, because I want to calculate the direction of force on wall. Force on wall निकालने के लिए मुझे wall का change in momentum चाहिए, which we cannot calculate because wall का initial velocity, final velocity के बारे में कुछ नहीं दिया गया है. लेकिन ball का initial velocity और final velocity दिया हुआ है. तो मैं ball का change in momentum निकालूंगा तो मुझे ball का force निकल जाएगा. तो जितना force ball पे लगाया, कौन लगाया ball में? Wall ने लगाया. तो वैसे ही बॉल में भी कुछ फोर्स लगाएगा. बॉल पे वॉल ने लगाया, वैसे बॉल पे बॉल लगाएगा, इक्वल एंड ऑपोजिट. सो इफ आई कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन बॉल सो ठीक उसका ऑपोजिट ऑन वॉल होगा. ओके, तो हाउ टू कैलकुलेट? वी यूज न्यूटन सेकंड लॉ. न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है? फोर्स ऑन एनी बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो वी विल फाइंड द चेंज इन मोमेंटम एंड वी विल सी बॉल का जो फाइनल मोमेंटम किस तरफ है उसी तरफ फोर्स भी लगा होगा बिकॉज न्यूटन सेकंड लॉ यही बोलता है. सो व्हाट आई एम डूइंग, सी फॉर फिगर ए, फॉर दिस फिगर, बाय न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स ऑन बॉल इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल. सो आई एम गोइंग फॉर द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल. ओके, अब जब तुम चेंज इन मोमेंटम निकालोगे, मोमेंटम इज अ वेक्टर. अब ध्यान से मेरी बात अच्छे से समझना. मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मास इज वेलोसिटी. सो व्हेन वी deal with plus minus of vector quantity we have to see whether they are in same direction or not. Okay,
Understand? For that, what we do, we take a convention, this convention, which is already given in the question. This is called convention. अगर क्वेश्चन में कन्वेंशन नहीं दिया होगा, so you take it on your own. Towards right side positive x-axis, towards upward positive y-axis. That is towards this side negative x-axis, towards this side negative y-axis. Now, what this convention say? This convention say, if the momentum is towards positive direction, I will take positive. If the momentum is towards this direction, I will take minus x, minus negative, because मैंने इस convention में इस तरफ वाले जाने वाले को x axis माना, मतलब ये plus axis है, इस तरफ वाला माइनस एक्स एक्सिस होगा, ऊपर वाला प्लस वाई होगा, नीचे वाला. दिस इज द कन्वेंशन व्हिच आई हैव टेकन ऑन माय ओन. In this question, that convention is already given to you. But if in any other question the convention are not given to you, you have to take the conventions for your own. Why we are taking the convention? क्यों? Because momentums are vector quantity. इसलिए मैं कन्वेंशन ले रहा हूँ. ये जानना बहुत जरूरी है कि मैं कन्वेंशन क्यों ले रहा हूँ. क्योंकि मोमेंटम्स वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी का एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, उसके लिए हमें डायरेक्शन सेम करना पड़ता है. सो change in momentum of ball is equals to final momentum of ball minus initial momentum of ball. Final momentum of ball कहां दिया है? ये है final momentum. इस तरफ जा रहा है velocity. So mass into final velocity. Minus. Why minus? Because it's going that direction. So minus mu. This u is this one. Minus initial momentum is going this direction. Initial velocity. This is initial velocity. Is going in this direction. So minus प्लस mu. तो मैं इसको प्लस mu ले रहा हूं. ये क्या है? साइन कन्वेंशन. So what this plus mu show? It shows that the initial momentum is towards positive x-axis. Minus mu show the final momentum is towards negative x-axis. So we got change in momentum is minus 2 mu. Change in momentum निकल गया. क्यों निकाला? To get the direction of the force. Therefore, direction of force on ball is equals to direction of final momentum of the ball. तो ये नेगेटिव आया ना, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस है. दैट मींस डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन बॉल इज नेगेटिव. अगर ये पॉजिटिव आता तो पॉजिटिव एक्स की तरफ डायरेक्शन होता. क्लियर? सो इज फॉलोइंग द प्रोटोकॉल, द थ्योरी व्हाट यू हैव स्टडीड. तो फाइनल, अगर तुम ये कैलकुलेशन नहीं भी करोगे ना, तब भी बोल सकते हो वेयर इज द फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल. फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल इन दिस डायरेक्शन. दैट मींस फोर्स ऑन बॉल इज नेगेटिव एक्स एक्सिस. बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन बॉल विल बी पॉजिटिव एक्स एक्सिस. उल्टा, बॉल पे अगर फोर्स नेगेटिव एक्स एक्सिस तरफ है तो वॉल पे कहां होगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस. तो फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब मिल गया मेरे को. ओके, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन बॉल बाय इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस. नाउ वी नीड टू फाइंड द रेशियो ऑफ द इंपल्स. सो लेट्स कैलकुलेट द इंपल्स फॉर फिगर ए. तो व्हाट इज इंपल्स? I1, चेंज इन मोमेंटम. दैट वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड minus 2 mu. इंपल्स निकल गया. ओके, नाउ दिस वाज वेरी इजी. व्हाई? बिकॉज द momentum direction were in the straight line. Momentum straight line में था, तो we directly use conventions and we got the momentum value. Okay, but इसमें बहुत कचरा है. Again I have told you to find the change in momentum should be in same direction. Okay, तो जब same direction में है तो ये straight line है ना, तो straight line केस में मैं माइनस प्लस करके same direction कर सकता हूं. बट जो अलग अलग है इनके लिए मैं क्या करूंगा? So what I'm doing here, so for figure B, this is the initial velocity. That means, can I say this is the initial momentum EI? What is the initial momentum? mu. This is the final velocity. Reflect करके चला गया. Can I say this is the final momentum? Velocity जिधर होगा उधर ही momentum भी होगा ना. So this is the final momentum mu. Now these two momentums are in different direction. ओके, ना ही ये x की तरफ है ना ही ये y की तरफ है. तो आप इनके साथ में सबट्रैक्ट, मैं ऐसा नहीं कर सकता. चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल माइनस इनिशियल. अब मैं ये कर ही नहीं सकता. व्हाट इज फाइनल? mu. व्हाट इज इनिशियल? mu. ये दोनों मोमेंटम में सबट्रैक्ट कर नहीं सकता बिकॉज दे आर इन डिफरेंट डायरेक्शंस. सो व्हेन द वेक्टर्स आर इन डिफरेंट डायरेक्शंस, व्हाट वी डू क्लास? ये तो वेक्टर कॉन्सेप्ट है, ये तुम्हें सोचना पड़ेगा. जब वेक्टर्स डिफरेंट डायरेक्शंस में होते हैं तब हम क्या करते हैं? Then we resolve it and we bring it in the same direction. So this you need to understand the need of resolution. Why we need to resolve? क्यों resolve करना पड़ेगा? Because the momentums are in different direction. वहां पे resolve करने का जरूरत नहीं पड़ा. वहां पे convention यूज किया, अपने आप same direction में आ गया माइनस प्लस, क्योंकि वो straight line केस था. यहां पे momentums अलग अलग डायरेक्शन में है. So that's why this angle was given to you in the question. This is 30 degree and this is 30 degree.
सो व्हेन आई स्टार्ट रिजॉल्विंग द मोमेंटम, दिस इज इनिशियल मोमेंटम, इसका रिजॉल्व एक्स एक्सिस में करो तो ये इस तरफ डायरेक्टेड है, तो इस तरफ एक मोमेंटम आएगा पी आई कॉस 30, इस तरफ से इस तरफ 30 एंगल बना हुआ है। सो पी आई कॉस 30 से जब परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, पी आई साइन 30। सिमिलरली अब जो पी एफ है वो इस तरफ डायरेक्टेड है, इस तरफ, इसको इस तरफ रिजॉल्व करो तो इधर आएगा पी एफ कॉस 30, इसको इस तरफ रिजॉल्व करो तो इधर कितना आएगा पी एफ साइन 30। डन, इतना समझ में आया कि नहीं आया? ओके, सो वी आर रिजॉल्विंग, सो दिस इज योर इनिशियल मोमेंटम along x axis, initial momentum along x axis, this is final momentum along x axis, this is initial momentum along y axis, this is final momentum along y axis. So now we cannot apply change in momentum with the actual direction because momentums are vector quantity and they are in different directions. तो इन केसेस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चेंज इन मोमेंटम along x axis निकालना पड़ेगा अलग से, चेंज इन मोमेंटम along y axis निकालना पड़ेगा अलग से, और फिर हमें काम करना पड़ेगा। क्लियर? सो ऐसे मुझे क्यों करना है, क्योंकि ये डिफरेंट डायरेक्शंस में है मोमेंटम। यू अंडरस्टैंड दिस? ओके, हम चेंज इन मोमेंटम क्यों निकाल रहे हैं, इंपल्स भी निकल जाएगा, साथ ही साथ डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी निकल जाएगा ऑन वॉल। ओके, सो बस डिफरेंस क्या है, पहले हम डायरेक्टली चेंज इन मोमेंटम निकाल रहे थे, अब हमें चेंज इन मोमेंटम दो डायरेक्शन में निकालना पड़ेगा, along x एक्सिस अलग से निकालना पड़ेगा, along y एक्सिस, बिकॉज आई कैन नॉट वर्क विद पी आई एंड पी एफ, आई हैव टू वर्क along x एक्सिस along y एक्सिस। ओके, so I'm not writing these statements again, by Newton's second law, force on wall, so I'm directly going for along x axis change in momentum, change in momentum of ball, I'm writing it as del px, change in momentum along x axis, that is what final momentum along x axis minus initial momentum along x axis, यही होगा। now what is the final momentum, this is final momentum along x axis, किस तरफ है, ये है, इस तरफ जा रहा है, मतलब माइनस पी एफ कॉस 30, ये समझ में आ गया पक्का, ये है फाइनल मोमेंटम। इसका अलॉन्ग एक्स एक्सिस कौन सा, इस तरफ जा रहा है ना, तो ये क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो माइनस पी एफ माइनस पी आई एक्स, इनिशियल मोमेंटम अलॉन्ग एक्स एक्सिस, दिस इज द इनिशियल मोमेंटम, इसका अलॉन्ग एक्स इस तरफ जा रहा है, ये वाला इस तरफ जा रहा है, तो प्लस पी आई कॉस 30, क्योंकि उस तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। सॉल्व इट, माइनस पी एफ इज व्हाट, माइनस एम यू कॉस 30 माइनस एम यू cos 30, I am getting minus 2 mu cos 30. Okay, so what is this cos 30 value? Cos 30 is root 3 by 2, so minus root 3 mu. So we got the change in momentum along x axis. Okay, now along y axis, let's calculate along y axis, फिर इनका रिजल्टेंट निकालेंगे। along y axis change in momentum of ball del py, ओके, क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम अलॉन्ग y एक्सिस माइनस इनिशियल मोमेंटम अलॉन्ग y एक्सिस। अब इसको बेटा थोड़ा ध्यान से सुनना, फाइनल मोमेंटम अलॉन्ग y एक्सिस, दिस इज द फाइनल मोमेंटम, इसका y कंपोनेंट ये रहा, कहां जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो माइनस पी एफ कॉस, सॉरी माइनस पी एफ साइन 30। ओके, ये समझ में, माइनस क्यू, दिस इज द फाइनल मोमेंटम, इसका y कंपोनेंट ये रहा, तो दिस इज गोइंग टुवर्ड्स नेगेटिव y एक्सिस, सो माइनस पी एफ साइन 30 माइनस व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम अलॉन्ग y एक्सिस, दिस इज द इनिशियल मोमेंटम, इसका y कंपोनेंट ये रहा, दैट इज आल्सो गोइंग डाउनवर्ड, सो माइनस पी आई साइन 30। क्लियर? सो सॉल्व करो, माइनस एम यू, पी एफ की जगह एम यू लिख दिया, साइन 30 माइनस माइनस प्लस एम यू साइन 30, सो आई एम गेटिंग 0, मतलब there is no change in momentum along y axis, therefore so momentum change in momentum along x axis and change in momentum along y axis दोनों मिल गया, therefore net change in momentum कितना आएगा, net change in momentum of ball वो कैसे निकलेगा, अंडर रूट डेल पी एक्स होल स्क्वायर प्लस डेल पी वाई, ये क्या हुआ, वेक्टर कॉन्सेप्ट, पता नहीं तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमने क्या किया,
एक मोमेंटम डेल पी एक्स निकाल लिया, एक मोमेंटम डेल पी वाई निकाल लिया, ठीक है ना। तो नेट मोमेंटम कैसे निकलेगा, तो टू वेक्टर्स मेकिंग एंगल 90 डिग्री, तो फॉर्मूला क्या होता है, डेल पी एक्स स्क्वायर प्लस डेल पी वाई स्क्वायर प्लस 2 डेल पी एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा, होता है ना रिजल्टेंट का फॉर्मूला यूजिंग ट्रायंगल मेथड, तो हम वो लगा रहे हैं। ओके, तो डेल पी एक्स स्क्वायर प्लस डेल पी वाई स्क्वायर प्लस 2 डेल पी एक्स डेल पी वाई कॉस 90 जीरो हो जाएगा, हम फॉरगेट अबाउट इट। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस इज जीरो, सो इनडायरेक्टली घूम फिर के डेल पी एक्स ही आ रहा है। तो अगर तुम ये सब छोड़ भी दोगे, इसे नहीं भी दिखाओगे तब भी चलेगा। सो एक डेल पी एक्स आ गई है, डेल पी वाई आ गई है, सिंस डेल पी वाई गेटिंग जीरो, तो हमारा नेट मोमेंटम भी डेल पी एक्स के बराबर आ गया। सो व्हाट इज नेट चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल, -2 mu, सॉरी -√3 mu, -√3 mu आ गया। ओके, क्योंकि वो डेल पी एक्स के बराबर था। अब यहां से क्या पता चला है, यहां से क्या पता चल रहा है, फोर्स ऑन बॉल by wall is towards negative x-axis. Therefore, by Newton's third law, थर्ड लिखना नहीं आ रहा है मेरे को, by Newton's third law, force on wall by ball वो कितना होगा, positive x-axis. Every action has an equal opposite reaction. Clear? I hope you understand. Right? Okay. तो अब निकल गया फोर्स, फर्स्ट क्वेश्चन खत्म। अब मुझे क्या निकालना है, इंपल्स। तो इसका इंपल्स तो निकाल लिया मैं, इसका इंपल्स क्या होगा, सिंस आई हैव वेरी लेस स्पेस, सो व्हाट आई एम डूइंग, नाउ क्लास प्लीज पॉज द वीडियो, ओके, एंड राइट डाउन द क्वेश्चन, ओके, पॉज द वीडियो बेटर। देयरफॉर इंपल्स, सेकंड इंपल्स क्या होगा, इंपल्स ऑफ सेकंड केस, दिस सेकंड इंपल्स, व्हाट इज इंपल्स, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम कितना है फर्स्ट सेकंड, -3 -√3 mu। ओके, देखो व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इसका और इसका दोनों का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, दोनों। फॉर फिगर ए व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। फिगर बी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन वॉल, इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 2 वाज रेशियो द मैग्नीट्यूड द इंपल्स, तो I1 by I2 दोनों का इंपल्स का -2 mu by -√3 mu. So what you got, 2 by √3 is the ratio of the impulses. Okay class, I hope you understand. I think cos factor is √3 by 2 only, right? I'm not sure. I am sure. Okay, now see. यही क्वेश्चन मैंने क्यों करवाया, because this question contains lots of other questions which you will get as a homework. Okay, इस क्वेश्चन में तुम्हें फोर्स का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया कि कैसे निकालते हैं फोर्स। तो फोर्स निकालने के लिए हमें चेंज इन मोमेंटम निकालना पड़ता है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स हर टाइम फाइनल मोमेंटम की तरफ होगा, दैट कॉन्सेप्ट ओनली आई यूज्ड देयर। ओके, नेक्स्ट हमें इंपल्स निकालने के लिए चेंज इन मोमेंटम निकालना पड़ता है। अब चेंज इन मोमेंटम निकालने का एक तरीका है, मोमेंटम को डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते अगर वो स्ट्रेट लाइन में नहीं हो तो, और स्ट्रेट लाइन में होगा so we have to use the convention, positive x, negative x. Or when the momentum are making some angle, you have to resolve the momentum and you have to find change in momentum in two different directions, and then you have to find the net like this formula. I hope everything is clear class. Okay, this one question taken 20 minutes approximately. Let's go for the next question class. Okay, now see a smaller version of the previous question. I'm doing it, okay. There, this question, if you see in a refresher, they have solved in a different way. They did not take in the conventions x and y. They simply did it. So that is the reason I'm doing it. I will in detail, I will explain everything, and you will always proceed in the same way instead of book solutions. Okay. Now see, a ball is moving with a momentum of 15 kg per meter. So this is the initial momentum, 15 kg meter per second. Okay. Strike against the wall at an angle of 30 degree. So this is the wall, for example. Okay, a ball is moving like this, it strikes against a wall. So this is initial momentum with an angle of 30 degree. Now 30 degree किसके एंगल है, वॉल के साथ, पहला मिस्टेक। तो मैंने तो ये वाला क्वेश्चन करा था, ये 30 था, तो वहां पे तो फिगर में दिया हुआ था ना आपको फिगर में, बट यहाँ पे तो क्वेश्चन बोला है स्ट्राइक अगेंस्ट अ वॉल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। 30 degree is the angle with the wall. Okay, and is reflect back to the same momentum at the same angle. That means final momentum is also 15 kg meter per second.
सेम मोमेंटम, सेम रिफ्लेक्ट बैक भी कर रहा है. ओके, सो इट इज रिफ्लेक्टिंग बैक विद द सेम मोमेंटम एंड विद द सेम एंगल. हो गया. नाउ वी हैव टू फाइंड impulse. Now what is impulse? Change in momentum. So can you find the change in momentum of this case directly? No. ये दोनों मोमेंटम अलग अलग डायरेक्शन में है, तो क्या करना पड़ेगा? रिजॉल्व करना पड़ेगा. तो रिजॉल्व करो. तो ये PI है, PI का इस तरफ डायरेक्ट 30 इसके साथ बनाया हुआ है, तो इस तरफ आएगा PI cos 30 और PI cos 30 से इस तरफ आएगा PI sin 30. पहले ये एंगल 30 था, तो ये था PI cos 30, ये था PI sin 30. PI जिसके साथ एंगल बना रहा है वो cos 30 होगा और cos 30 से जो परपेंडिकुलर होगा वो sin 30 होगा. So this is the initial momentum along x axis and this is the initial momentum along y axis. वैसे PF इस तरफ जा रहा है, तो PF इसके साथ बना रहा है एंगल 30. So this is PF cos 30 और cos 30 से जो परपेंडिकुलर होगा इस तरफ, that is PF sin 30. ओके, अब यहाँ पे मैं एक साइन कन्वेंशन यूज करूंगा which you have to show like this. बुक्स में ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं किया हुआ है, ये सब कुछ नहीं दिया हुआ है. दे डायरेक्टली सॉल्व द क्वेश्चन, पता नहीं कैसे आएगा. सो वी हैव टू डू इट इन दिस वे. ओके, सो अब मुझे इंपल्स निकालना है, इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम. सो इन दीस केसेस वी नीड टू फाइंड टू चेंजेस इन मोमेंटम. फर्स्ट, चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस माइनस इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस. कितना होगा? फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज द फाइनल मोमेंटम. इसका कंपोनेंट है एक्स एक्सिस इस तरफ है, यहां पे, सो इट इज गोइंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, दैट इज माइनस पीएफ sin 30. क्लियर? माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑन एक्स एक्सिस, दिस इज द इनिशियल मोमेंटम. इसका एक्स कंपोनेंट कौन सा है? इसका एक्स कंपोनेंट ये रहा, इसका एक्स कंपोनेंट ये रहा. किस तरफ जा रहा है? उधर जा रहा है, तो प्लस पी आई sin 30. I hope you understand. So this is equals to minus, what is PF? 15 into sin 30. Sin 30 is half. Minus again 15. Sin 30 is half. I hope you understand. Plus that is what? Minus 2 into 15 into half. That is how much? Minus 15. Minus 15. तो del px कितना आया? Del px is minus 15 kg मीटर पर सेकेंड. ओके, तो ये काम करते हैं, ये सब कैलकुलेट ऐसा ना करके ना डायरेक्टली करते हैं. ये माइनस 15 क्यों डाल रहा पता नहीं. तो ये क्या हो जाएगा? माइनस पी एफ साइन 30 माइनस पी आई साइन 30. पीएफ एंड पीआई बोथ आर इक्वल, तो माइनस 2 पीएफ साइन 30, क्योंकि दोनों इक्वल है ना बेटा. सो आई कैन राइट लाइक दिस. नाउ आई कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू माइनस 2 into 15 into 30, that is nothing but minus 15 kg meter per second. So del px is minus 15 kg meter per second. Okay, similarly what is del py? Change in momentum along y axis, final momentum along y axis minus initial momentum along y axis. Okay, final momentum ये है, इसका y की तरफ कौन सा कंपोनेंट है? pf cos 30 and it's going downward, so downward is negative y axis, तो minus pf cos 30 minus pi, this is pi, so along y axis is this, it is also going downward, so minus pi cos 30. So how much you will get? Minus pf 15 cos 30 minus plus 15 cos 30. I am getting 0. So what is del py? Change in momentum along y axis is 0. Therefore net change in momentum कैसे निकलेगा? Net change in momentum, ओके, डेल पी, ये तो समझ में आ गया होगा, दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं है. डेल पी एक्स होल स्क्वायर प्लस डेल पी वाई होल स्क्वायर, थोड़ा सिंपल अलग अलग हो जाएगा. ओके, अंडर रूट प्लस 0 आएगा. आई होप यू अंडरस्टैंड प्लस 0 टू, बिकॉज वी हैव नाउ डेल पी एक्स इस तरफ एंड डेल पी वाई इस तरफ. सो इनका एंगल इज 90 डिग्री, सो इनका जो रिजल्टेंट होगा दैट इज योर डेल पी. Okay, so that is what under root this square plus 2 this into cos 90. So 1 is 0, so ये आ जाएगा del px के बराबर. So what is change in momentum? Is minus 15 kg per meter per second. Okay. Now this minus sign signify what? Why this minus sign is coming? Because I have taken some convention, and this minus sign signifies the force direction. Therefore, what is magnitude of the momentum? 15 kg meter per second.
therefore the impulse is equals to change in momentum का magnitude. Simple. That is minus नहीं लेंगे, सिर्फ 15 kg meter per second. That is your impulse. I hope you understand. माइनस को क्या कर दिया मैंने -q लगाया. माइनस क्यों आया? बिकॉज हमने कन्वेंशन यूज किया था, और ये माइनस क्या दिखाता है? फोर्स का डायरेक्शन दिखा रहा होता है, राइट? सो इंपल्स का मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड तो 15 ही है ना, प्लस. ओके, एंड दैट इज ओनली इंपल्स. इंपल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम. Okay, now see the next question. A hunter has a machine gun that can fire 50-gram bullets with a velocity of 150 meter per second. A 60 kg tiger springs at him with a velocity of 10 meter per second. How many bullets must the hunter fire per second into the tiger in order to stop him in his track? Okay, now the question is, first let's imagine this in figure. Okay, this is a gun from which the bullet is coming out. Let I have shown one bullet B which is going towards tiger, and the tiger is coming towards the man who is holding the gun. Okay, so initial condition, what is happening? The bullet is going with certain velocity UV. So what is velocity of bullet? Velocity of bullet कितना है? 150 meter per second, and the mass of bullet is md. How much it is? 50 gram. Okay, similarly, what is initial velocity of tiger? 110 meter per second, and the mass of tiger is 60 kg. Okay, so this is the initial condition. Of course, when the tiger will stop, when the bullet penetrates inside, the tiger is dead. So finally what happens? The bullet is also at rest. बुलेट का वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगा, टाइगर का वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगा. दैट मींस द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ टाइगर विल बी इक्वल्स टू जीरो. vv and vt. दिस इज द सिचुएशन आई नो. नाउ ऑफ कोर्स वो टाइगर एक बुलेट से तो नहीं जाएगा ना, बहुत सारे बुलेट्स जाएंगे. सो लेट n bullets fired. Okay, n bullets fired in 1 second. In 1 second. Okay, तो n bullets फायर होने के बाद वो टाइगर रुक गया. तो how many bullets must the hunter fire per second into the tiger in order to stop him in his track? So in 1 second n bullets are fired. For example, I have taken. तो अब इस क्वेश्चन को करो कैसे? ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है? जैसे पहले जो क्वेश्चन हमने किए थे तो इंपल्स पूछा था, तो डायरेक्टली मैं थ्योरी में चला गया. इंपल्स से चेंज इन मोमेंटम, इसलिए मोमेंटम चेंज निकालूंगा, आंसर आता है, राइट? फोर्स का डायरेक्शन पूछा है, तो फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए मुझे न्यूटन सेकंड लॉ लगाना पड़ेगा. तो आई फाइंड इट द चेंज इन मोमेंटम, वहां से मुझे फोर्स का डायरेक्शन मिल गया. इस क्वेश्चन में तो नंबर ऑफ बुलेट्स पूछा है, तो नंबर ऑफ बुलेट्स का तो कोई पर्टिकुलर सिचुएशन नहीं है ना, कोई पर्टिकुलर टॉपिक में तो नंबर ऑफ बुलेट्स निकालने का थ्योरी तो हमने नहीं पढ़ा. तो जब कोई क्वेश्चन एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से नहीं आता है और इस क्वेश्चन में कुछ हो रहा है, सब इंसिडेंट इज हैपनिंग, इनिशियली समथिंग हैपनिंग, फाइनली समथिंग हैपनिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड. हाँ, मैं क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व नहीं किया, आई एम डूइंग सम ब्रेनस्टॉर्मिंग हाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट वी विल अप्लाई टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन. ओके, तो तुम समझो अच्छे से इस सिचुएशन में क्या हो रहा है. ये क्वेश्चन में इनिशियली बुलेट टाइगर की तरफ, टाइगर बुलेट की तरफ आ रहा है. आफ्टर सम टाइम, ओके, फॉर एग्जांपल आफ्टर 1 सेकेंड, टाइगर और बुलेट दोनों रुक गया, जीरो हो गया. टाइगर डेड, बुलेट टाइगर के अंदर घुस के वेलोसिटी जीरो हो गया. So something is happening, some incident is happening. So there is some initial condition, there is some final condition. So in these situations, what will you do? You apply conservation of energy, you apply conservation of momentum. Okay, so whenever any topic is not belongs to a particular theory topic which is studied, we did not ask here for impulse, we didn't ask here for finding the different topics whatever we have studied in this chapter. Laws of motion जो भी हमने टॉपिक पढ़ा, फ्रिक्शन पढ़ा, तो यहाँ पे कहीं फ्रिक्शन नहीं पूछा है, यहाँ पे कहीं इंपल्स नहीं पूछा है, यहाँ पे कहीं फोर्स नहीं पूछा है तुमको, यहाँ पे सिंपली नंबर ऑफ बुलेट्स पूछा है. वो किसी टॉपिक से रिलेटेड नहीं है. हाँ, लेकिन क्वेश्चन में क्या हो रहा है? इनिशियली कुछ हो रहा है, फाइनली कुछ हो रहा है. तो दोनों केस में क्या चीज सेम रहेगा? इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम इक्वल होगा. तो इस कंडीशन को, इस यूनिवर्सल लॉ को हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. Okay, so by conservation of momentum, so I hope you understand why we are applying conservation of momentum, how we understand that we need to apply conservation of momentum, that you need to understand. ये क्वेश्चन को मैं कर ही रहा हूँ इसलिए to make you understand that how we
how the thing will click in your mind that we have to go for conservation momentum. कहीं भी क्वेश्चन में नहीं बोला है कि अप्लाई कंजर्वेशन मोमेंटम, तो क्वेश्चन में कुछ इंसिडेंट हो रहा है. Initially something is happening, finally something else is happening. So by conservation of momentum, okay, initial momentum of bullet plus initial momentum of tiger will be equals to final momentum of bullet plus final momentum of tiger. जो मोमेंटम लगाता है वो पूरे सिस्टम के साथ लगता है. सिस्टम में बुलेट और टाइगर दोनों साथ में. ओके, तो इनिशियल मोमेंटम बुलेट की तरह इस तरफ डायरेक्टेड है, फाइनल मोमेंटम बुलेट किस तरफ है, इस तरफ डायरेक्टेड, ऑपोजिट डायरेक्शन में. इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते, फिर से कचरा हो गया, ऑपोजिट डायरेक्शन में है. डू यू अंडरस्टैंड? तो अब देखते हैं इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट कितना है, मास ऑफ बुलेट इनटू इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट. लेकिन एक बुलेट फायर नहीं हुआ ना, n बुलेट्स फायर हुआ है, तो टोटल मोमेंटम ऑफ बुलेट क्या होगा, n इनटू मोमेंटम ऑफ वन बुलेट. क्योंकि हम एक बुलेट फायर नहीं कर रहे, हम n बुलेट फायर कर रहे हैं टाइगर को स्टॉप करने के लिए. तो इनिशियली देयर आर n नंबर ऑफ बुलेट्स लाइक दिस ना, लाइक दिस देयर आर n नंबर ऑफ बुलेट्स. सो ऑल द बुलेट्स इनिशियल मोमेंटम, तो एक बुलेट का मोमेंटम इनटू n प्लस माइनस, वाई माइनस, डायरेक्शन सेम करने के लिए. इसका इस तरफ है, इसका इस तरफ है, तो इसको माइनस कर दो. तो उसको व्हाट इज, अगर इसका मोमेंटम इस तरफ है, अगर माइनस कर दूं तो नेगेटिव वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा. देन आई कैन ऐड दिस टू. यू अंडरस्टैंड माइनस का मतलब क्या होता है, टू मेक द डायरेक्शन सेम. माइनस मास ऑफ टाइगर इनटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ टाइगर इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट इज 0, फाइनल मोमेंटम ऑफ टाइगर इज आल्सो 0. दोनों रूट किया है. सो व्हाट इज गॉट, एम एमबी यूबी इक्वल्स टू एमटी यूटी. ये समझ में आ गया? तो बुक्स ने क्या किया है, डायरेक्टली यहां से स्टार्ट किया सोल्यूशन. बट ये कहां से आएगा, ये आएगा यहां से. सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस क्वेश्चन टू मेक यू अंडरस्टैंड क्लियरली. ओके, नाउ यू कैन सबसे पहले व्हाट इज इट, मास ऑफ टाइगर 60 केजी, केजी है, ये ग्राम है, तो उसको ग्राम में कन्वर्ट करो इनटू 1000 इनटू वेलोसिटी ऑफ टाइगर 10 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ बुलेट 50 ग्राम इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट 150 मीटर पर सेकंड. सॉल्व कर लो उसको बैठ के. 0 0 कट गया, 0 0 कट गया. ओके, अब बैठ के सॉल्व करो. 3 2 6, 3 5 15, 5 2 10, 0 0, 5 4 20, 0. That means how much? 80 bullets. So 80 bullets fired in 1 second class. I hope you understand how to apply conservation of momentum, when to apply conservation of momentum. That is very much important. Now again this question is very easy, but the solution what is given in the book, that solution is not proper, it is not self-explanatory. Okay, so I am doing a different solution. Try to understand. A hunter has a machine gun that fires a bullet of 40 gram with a velocity of 1200 meter per second. The person holding it can apply a maximum force of 144 Newton on the gun. What is the maximum number of bullets that can be fired per second? कितना बुलेट फायर कर सकता है, सच दैट आदमी जो बुलेट को, गन को पकड़ेगा वो मैक्सिमम 144 न्यूटन गन में फोर्स लगा सकता है. तो अब सुनो मेरी बात. ये जो फोर्स लगाया है वो किस में लगाया है, गन पे ना. तो फोर्स ऑन गन इज इक्वल्स टू एट बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ, बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ. द फोर्स ऑन गन इज इक्वल्स टू चेंज ऑफ मोमेंट ऑफ द गन बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. यहां पे जो बुलेट निकालना है वो कितने टाइम के लिए निकालना है, 1 सेकंड के लिए ना. तो मेरा टाइम 1 सेकंड का है, सो टाइम इज 1 सेकंड. तो फोर्स ऑन गन इज Fg इक्वल्स टू चेंज मोमेंटम डेल पी ऑफ गन. याद रखना, इट इज फोर्स ऑन गन इज इक्वल्स टू डेल पी ऑफ गन. टाइम 1 सेकंड ले लिया, देयरफॉर फोर्स ऑन गन इज नथिंग बट डेल पी ऑफ गन, मतलब चेंज मोमेंटम ऑफ गन. तो चेंज मोमेंटम ऑफ गन निकालो, वहां से फोर्स इन गन मिल जाएगा. तो फोर्स इन गन इज ऑलरेडी गिवन टू 144 न्यूटन. बट कैन यू फाइंड चेंज मोमेंटम ऑफ गन? क्या गन का वेलोसिटी दिया हुआ है? नहीं, बुलेट का वेलोसिटी दिया हुआ है. दैट मींस तुम्हें गन के मोमेंटम को बुलेट के मोमेंटम के फॉर्म में लिखना पड़ेगा. ओके, समझ में आया नेक्स्ट स्टेप क्या बोलना चाह रहा हूं. तो जो गिवन है, गिवन फोर्स इन गन है. सो बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ, फोर्स इन गन इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम ऑफ गन बाय टाइम. That is time we are taking 1 second. Why? Because we need number of bullets only for 1 second. So I am taking 1 second time. So we understand from here that force in gun is nothing, is change in momentum of the gun. Now,
can you calculate change in momentum of gun? No. Bullet's momentum is given to you, bullet velocity is given to you. So what's the next thinking process? My next thinking process will be is how to convert the change momentum of gun in form of change momentum of bullet. So by conservation momentum, it say the net change in momentum of bullet and gun will be 0. In a system, change in momentum of gun and change in momentum of bullet will be 0. From यहाँ से क्या आ जाएगा? Change in momentum of gun is equals to minus change in momentum of bullet. Now what this minus sign show? This minus sign show that bullet अगर आगे जा रहा है तो gun पीछे जा रहा है. But this indicates opposite direction of momentum. So minus sign सिर्फ दिखाता है direction. तो अगर magnitude भी देखूं तो change in momentum of gun and change in momentum of bullet will be same. Therefore, force on gun will be equal to change in momentum of bullet. तो मैंने कन्वर्ट कर दिया बुलेट के फॉर्म में. अब मैं यहां से मोमेंटम चेंज निकालूंगा बुलेट से, वहां से नंबर ऑफ बुलेट्स निकल जाएंगे. सो देयर लेट n bullets fired in 1 second. So what is change in momentum of bullet? Final momentum of bullet, that is after firing, minus initial momentum of bullet before firing. तो फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट, कितना बुलेट फायर किया? n into momentum of one bullet. What is momentum of one bullet? Mass of bullet into velocity of bullet minus 0. Why 0? बुलेट फायर होने से पहले तो कोई मोमेंटम नहीं था ना, 0 था ना, तो इनिशियल मोमेंटम बुलेट इज ऑलवेज 0. सो यहां से क्या आ गया? del p change in momentum of bullet is nothing but n mp only. Therefore apply the formula. Force on gun, how much it is? 144 Newton equals to n into mass of bullet. How much it is? 40 gram. So it is 40 by 1000 करना पड़ेगा. क्यों? ग्राम में दिया हुआ है, not SI unit, but force is in SI unit. तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा. Into velocity of bullet, how much is given to you? That is in SI unit, 1200. I hope you understand. तो बुक ने क्या किया? डायरेक्टली ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है. डायरेक्टली ये सब कहां से आया? कुछ नहीं समझाया. बुक ने बोला है कि फोर्स ऑन गन इज चेंजिंग मोमेंटम ऑफ बुलेट. कहां से भाई? फोर्स इन गन तो चेंजिंग मोमेंटम ऑफ गन होगा ना, बुलेट तो नहीं होगा. वो तो हमको कन्वर्ट करना है यूजिंग द फॉर्मूला. क्लियर? सो यहां से तो मैंने निकाल लूं अपने से. दैट यू कैन डू ऑन योर ओन. ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो क्लास. Thank you very much.